ये मैच जो है 6 ओवर का मैच होगा MCX और NSDL के लिए। मैं बताना चाहूँगा, माफ़ कीजिएगा, MCX और CDSL के लिए बताना चाहूँगा, ये 6 ओवर का मुकाबला है। और इसी बीच ये देखिए रन लेने का कोई मौका नहीं दिया और बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हो रही है। 6 ओवर के मुकाबले में 2 ओवर पावर प्ले के होते हैं और निश्चित तौर पर MCX के बल्लेबाजों को उस पर ध्यान देना होगा विशेष तौर पर, और वही जो ओवर रहते हैं उसमें बड़े स्ट्रोक खेले जा सकते हैं। इसी बीच ये उड़ाया हवा में और देखना होगा, मुश्किल कैच था, दूसरे रन की कोशिश कर रहे थे लेकिन थ्रो बढ़िया रहा। और इस समय आप देख सकते हैं जैसे कि 5 गेंदें फेंक चुके हैं, 6 रन इस समय MCX का टोटल स्कोर हो चुका है। टॉस जीता था CDSL की टीम ने और फील्डिंग करने का निर्णय लिया, आमंत्रित किया MCX की टीम को बल्लेबाजी के लिए। बहुत ही बढ़िया गेंद है, ये अच्छी गेंद फेंकी और सफलता मिली है अंतिम गेंद पर। पहले ओवर की अंतिम गेंद थी, ये कट करने की कोशिश थी लेकिन बहुत ही बढ़िया गेंद और आउट हो चुके हैं, क्लीन बोल्ड हो चुके हैं। और बहुत ही अच्छी यहां पर तारीफ करनी होगी गेंदबाज की, जितेंद्र बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए और 6 रन देकर एक विकेट चटकाया। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है, MCX का टोटल स्कोर 6, 1 विकेट के नुकसान पर 1 ओवर के बाद। Jagrut has brought into attack now. Well, the first over 6 runs and 1 wicket. What a start for CDSL. Now MCX, they need to be very careful. Well, yesterday all the matches they have won. Today is the first match they are playing against the CDSL. Wanted to play up Pishley and then down to the mid wicket, and 2 fielders are there, gone for the 2 runs. Good running between the wicket, couple of runs take to total. Score moves up to now 8 runs. And this is quite outside of the leg stump. White signal given by the umpire. What a stroke! No one there to collect, and that's gone all the way for the boundary. What a stroke, what a timing, what a elevation. It was a loose ball, and the batter takes advantage of that.
This is going to be the last ball of the over. And hooked it over the short square leg, and that's going again. What a stroke! That's gone for a boundary, and boundary on the last ball of the over. And here is the end of the over number 2. M6 total is 19 with a loss of 1 wicket. Nineteen runs now. The first ball of the over, and playing finds the gap, and it's a boundary. So the batter welcomes to Jitendra with the boundary, and now score is 23 with the help of the boundary. (27 run). Now 2 balls are remaining in this over. Current run rate is 10.13. This is 6-over match. Back of lane, and trying to hit on the offside. The fielder is chasing over there. The ball wins the race, and that's gone for a boundary. Runs are coming here for the M6 team now. With the help of that boundary, score moves up to 31 run. Last ball of the over now.
It's in the air. And what a running between the wicket. Very good running between the wicket. And here is the end of the over number 3. M6 total is 33 with the loss of 1 wicket. M6 का total score 3 ओवर के बाद 33 रन 1 विकेट के नुकसान पर. Dancing down the ground, playing on the onside, gets a single run. And now the total score moves up to 34. Total score is now 34. In the air, and what a stroke. What a timing, and that's gone. Maximum sixer. What a connection. And now the score moves up to 40 runs. Last 2 balls are left of this spell. Once again using his feet, but this time not a proper connection. And meanwhile the single has taken. Trying to get run on each and every ball. And it's a good strategy. Rotating the strike. They got still many wickets in their hand. This one is good comeback made by the bowler. And here is the end of the
over after 4 overs, 41 with the loss of 1 wicket. For the next toss, I will request NSDL captain and NSC captain get ready for the toss after 2 overs. After this inning, we will have a toss between NSDL and NSC. The captain of both team get ready. Total after 4 overs with the loss of 1 wicket. In the air, and that did not carry. It was in the air, but it's good running between the wicket. Collected on the one bounce. Fifth over in progress. Total score is 44. Now changes on the field because of left-hand batter on strike, and because of him, because of the left-hand right-hand combination, they have to change the field position. High in the air and taken. So MCX have lost their wicket, second wicket, and after a long time, this is the breakthrough given by the bowler Ankush Shirke, and a nice catch taken there inside the 30-yard circle at short fine leg. And new batsman now. New batter comes. Mohsin now comes to the center. Again wanted to hit big stroke and big appeal, big shout. And everyone is now appealing. But umpire will have word with the square leg umpire and will let you know the decision. This time, middle of the bat in the air, and that's dropped. Chance of run out at the striker end. And yes, he has gone. One shot.
The catch dropped and 0 run. Yes. What a catch. Catch dropped and what a throw. A very good throw at the right end. Wicketkeeper collected, and as soon as he collected that ball, touches the stumps, and the batter was nowhere on the line. He was nowhere on the line, and that's why he has to go. This time now, playing on the offside, longer fielder is very quick. He runs there on the ball, and meanwhile the single taken. A very good running between the wicket. After 5 overs, total score is 45 with the loss of 3 wickets. 45 रन हो चुके हैं 5 ओवर के बाद 3 विकेटों के नुकसान पर. ये आखिरी ओवर जारी है, और आप देख सकते हैं जैसे कि पहली गेंद पर रन आया और 47 रन बन चुके हैं फिलहाल. देखना होगा आने वाले 5 गेंदों में कितने रन बना पाएगी MC6 की टीम. फॉलो थ्रू में बहुत ही बढ़िया रोकने में कामयाब रही है. अच्छी फील्डिंग. जगह से खेलने का प्रयास, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि क्रिकेट में फुटवर्क और मोबाइल में नेटवर्क होना जरूरी है. तीन गेंदें अभी भी बची है. बहुत ही बढ़िया ओवर यहां पर जागरूक द्वारा. इसी बीच ये बहुत ही अच्छी गेंद, मौका नहीं दिया जा रहा है. 2 गेंदें भी इस बीच बची है इस ओवर की. टॉस के लिए मैं आमंत्रित करूंगा NSDL के कैप्टन और NSC के कैप्टन. आपको तैयार रहना है, तुरंत ही टॉस होगा. बल्ले पर ठीक तरीके से गेंद आई नहीं. 38 सर्कल के अंदर 3rd मैन के ओर 30 गज के दायरे के अंदर खिलाड़ी थे और रोकने में कामयाब रहे.
बहुत ही बढ़िया ओवर यहाँ पर होता हुआ जागरूक का कम से कम रन देने की कोशिश इस ओवर में उनकी रही। कदमों का इस्तेमाल और इस बार एक रन तो तेजी से पूरा किया और ये नहीं रोक पाया चौका। तो 52 रन बने हैं। 53 रनों की चुनौती एमसीएक्स ने रखी है सीडीएसएल के सामने और चलते हैं टॉस के लिए। एनएसडीएल के कैप्टन और एनएससी के कैप्टन चलिए टॉस के लिए आइए। मात्रे सर है हमारे साथ अंपायर और उनके शुभ हाथों से टॉस होगा। एनएससी के कैप्टन टॉस यहाँ पर कॉल करेंगे। ये काफी महत्वपूर्ण मुकाबला है और ये 4 ओवर का मुकाबला होगा। मात्रे सर काफी अनुभवी अंपायर, एनएससी के कैप्टन। हिट्स और टॉस जीता है एनएससी की टीम ने। धन्यवाद मात्रे सर, आप यहाँ पर आए और ये टॉस काफी महत्वपूर्ण था आपके लिए। हाँ सर, टॉस काफ़ी इम्पोर्टेंट था कि जैसे कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिसीजन माइंडसेट फ्री हो जाता है कि अपने को वो करना है, ये करना है। ऑल द डिसीजंस आर इन देयर प्लेस, इट्स लाइक दैट। बहुत ही बढ़िया टीम आपकी इस समय कर रही है। आप सब लोग अच्छे खेल रहे हैं, सब लोग अपना अपना रोल पता है और सब लोग वो कंटिन्यू करेंगे वैसे। ऑल द बेस्ट टू यू अँड युअर टीम। पुन्हा एकदा तुम्ही आलात आता या ठिकाणी आजच्या दिवसातला हा तुमचा दुसरा सामना, काय म्हणाल याबद्दल आता? We'll try our best, we'll give our best and we see that we win the match. Yeah. खूप खूप शुभेच्छा तुम्हाला आणि तुमच्या संघासाठी. हो, एनएससी हॅज ओन द टॉस, दे हॅव डिसाइडेड टू फील्ड. थँक यू व्हेरी मच.
चलिए शुरुआत करेंगे। दोनों बल्लेबाज इस समय आ चुके हैं और 53 रनों की चुनौती है। मैच की शुरुआत होने जा रही है। गेंदबाज अपने गेंदबाजी मार्क पर है और स्ट्राइक पर आप देख सकते हैं जैसे कि अंकुश, नॉन स्ट्राइक एंड पर है साईनाथ। चलिए मैच की शुरुआत करेंगे। प्लीज वक्त के बारे में सहयोग कीजिए प्लीज। M6 टीम। उछाल और ये देखिए आमंत्रित किया। पहली ही गेंद पर एक महत्वपूर्ण विकेट, सफलता मिली है सिद्धार्थ दोषी को। अंकुश शिर्के को मजबूर किया खेलने के लिए और आप यकीन नहीं मानेंगे, पहली ही ओवर की पहली गेंद पर एक महत्वपूर्ण विकेट और CDSL ने अपना एक अच्छा बैट्समैन गंवा दिया। क्या बात है, M6 की बहुत ही बढ़िया शुरुआत। कल के दिन में भी बहुत ही बढ़िया M6 की टीम ने बढ़िया खेल दिखाया था और आज के दिन का यह पहला मुकाबला और पहली गेंद पर देखिए बहुत ही बढ़िया यहां पर गेंद फेंकी और आउट हो चुके। नए बल्लेबाज इस समय मैदान पर आ चुके हैं। प्रतीक, और ये दूसरे रन की मांग करेंगे और थ्रो किया है। देखना होगा, बहुत ही अच्छी दौड़ लगाकर 2 रन पूरे किए हैं। ये बैट्समैन को बताया जा रहा है कि आपको पिच पर नहीं दौड़ना है, ये एक बार वार्न किया है। बहुत ही प्रोफेशनल अंपायर है मात्रे सर। घुटने के बलबूते पे ऑन साइड पर मिड विकेट की दिशा में दूसरे रन की फिर से एक बार कोशिश करेंगे। क्या दौड़ लगाई है, बहुत ही बढ़िया दौड़ लगाकर 2 रन पूरे किए। अगला मुकाबला होगा NSC और NSDL के बीच। 4 ओवर का मुकाबला है वो। ओहो, ये अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद। और विकेट, दूसरे विकेट का पतन। CDSL अपना दूसरा विकेट गंवाते हुए।
Oh, what a stroke! And that's gone. Big six. 90-meter six. What a stroke played by him. CDSL needs such kinds of strokes. They need to go for the big strokes because they need 42 runs from coming 29 balls. लेग बाइस का इशारा करते हुए घुटने के बलबूते पे खेलने का प्रयास था लेकिन बल्ले पर नहीं ले पाए. बहुत अच्छी गेंद. पहला हो तो बहुत बढ़िया रहा. सिद्धार्थ ने एक ओवर में 5 रन देकर 2 विकेट महत्वपूर्ण लिए थे. तीन गेंदें अभी भी बची है. इसके बाद होने वाला मुकाबला जो है एमएससी और सेबी के बीच होगा. यस, एनएसडीएल और एनएससी के बाद एमएससी और एसएबी का मुकाबला होगा. और ये चौका लगा दिया. बहुत ही बढ़िया चौका. और रन आ रहे इस समय 17 रन बन चुके हैं. आखिरी गेंद अभी भी बची इस ओवर की. इसी बीच ये गेंद लेग स्टंप से बाहर. वाइड का इशारा करते हुए अतिरिक्त रन. पच्चीस गेंदों में 35 रन चाहिए जीतने के लिए. बैकफुट पर जाकर खेल दिया सीधे शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर में 1 रन के लिए. बहुत अच्छी दौड़ लगाकर 1 रन को पूरा किया. 2 ओवर की समाप्ति 19 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. 24 गेंदों में 34 रनों की आवश्यकता है सीडीएसएल को जीतने के लिए इस मैच को.
क्या बात है, बहुत ही बढ़िया चौका। इस समय रन आ रहे हैं। यहां से सीडीएसएल के चांसेस और बढ़ चुके हैं मैच जीतने के फिलहाल। बहुत ही बढ़िया कैच और ये महत्वपूर्ण विकेट। विकेट का पतन होता हुआ जागरूक को लौटना होगा। इस बार जगह से खेलने का प्रयास था, बल्ले पर नहीं आई गेंद ठीक तरीके से। और 3 ओवर की समाप्ति, 27 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 18 गेंदों में 26 रनों की आवश्यकता है फिलहाल जीतने के लिए।
क्या बात है, बहुत ही बढ़िया थ्रो करते हुए और रन आउट के तौर पर आउट। सीडीएसएल ने और एक विकेट गवा दिया, 4 विकेटें गवा दी है 27 पर। बल्ले का मुंह अंतिम क्षण में खोला और थर्ड मैन के ओर खेल दिया 1 रन के लिए। यहां से इक्के दुक्के से बात नहीं बनने वाली है, छक्के चौके लगाने होंगे। 16 गेंदों में 25 रन चाहिए जीतने के लिए सीडीएसएल को इस मैच को। साई स्ट्राइक पर, साई से काफी अपेक्षा है आज। ओ ये कनेक्ट नहीं हुई। साई के पास काबिलियत है लेकिन बल्ले से नहीं, बल्ले पर ठीक तरीके से नहीं ले पा रहे इस बार गेंद को। फिर से एक बार फुलटॉस, जूसी फुलटॉस गेंद थी ये और साई को केवल 1 ही रन मिला। साई को थोड़ी घाई करनी होगी निश्चित तौर पर। स्ट्राइक पर इस समय है सचिन। और ये देखिए क्या बात है, थर्ड अंपायर की मदद। चलिए अंपायर, थर्ड अंपायर बताएंगे हमें क्या निर्णय है। साफ सुथरा लाइव टेलीकास्ट है और कुछ ही क्षणों में ही आपको पता चलेगा। अंपायर सभी गए हैं। अंपायर, क्या ये व्हाइट गेंद थी? अंपायर ने यहां पर नो बॉल है और सम के आगे इस गेंद को पकड़ा था। एक्स्ट्रा रन प्राप्त होगा। निश्चित तौर पर स्टंपिंग करने की कोशिश, लेकिन देखिए स्टंप से आगे गेंद को उन्होंने पकड़ा और उसी की वजह वहां पर बहुत ही बढ़िया अंपायरिंग, नो बॉल का इशारा करते हुए और एक्स्ट्रा अगली गेंद होगी फ्री हिट। कमाल की अंपायरिंग, बहुत ही जबरदस्त निर्णय उन्होंने दिया। और इस बार तो निश्चित तौर पर आउट। अगर नसीब खराब हो तो ऊंट पे बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काटता है।
घुटने के बलबूते पे खेलने का प्रयास, और क्या बात है, क्लीन बोल्ड। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यहां पर हो रही है। ये कंजूस गेंदबाजी, महाकंजूस गेंदबाजी। 12 गेंदों में 23 रन चाहिए फिलहाल सीडीएसएल को। इस बार ये देखिए बल्ले पर ठीक तरीके से नहीं ले पाए। थर्ड मैन के खिलाड़ी वहां पर 30 यार्ड सर्कल के भीतर गेंद को रोकने में कामयाब रहे, और इस समय आप देख सकते हैं कि स्कोर हो चुका है 34 रन। वेलकम सेबी टीम, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इसी बीच ये देखिए बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन फील्डर के पास बहुत बढ़िया थ्रो किया, लेकिन ये रनआउट का मौका था, गवा दिया। 8 गेंदों में 18 रनों की आवश्यकता है फिलहाल जीतने के लिए सीडीएसएल की टीम को। ये अच्छा कनेक्शन है, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, अच्छी फील्डिंग, बहुत बढ़िया फील्डिंग करते हुए। वेलकम सतीश जी। और वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। इसी बीच ये बहुत ही बढ़िया तरीके से खेला, लेकिन 1 रन लेने में कामयाब रहे, और 5 ओवर के बाद 39 रन 5 विकेटों के नुकसान पर 6 गेंदों में 14 रन चाहिए जीतने के लिए। इस ओवर के बाद टॉस होगा, सेबी और एमएससी के कैप्टन को तैयार रहना है टॉस के लिए।
चलिए वक्त के बारे में सहयोग कीजिए प्लीज। पांच ओवर 39 रन, 5 विकेटों के नुकसान पर 6 गेंदों में 14 रन चाहिए जीतने के लिए। हर एक गेंद पर यहां पर बड़ा स्ट्रोक खेलना जरूरी होगा। इस बार हवा में गेंद और क्या छूटा, 2 रन मिले। बहुत अच्छी कोशिश रही लेकिन कैच नहीं ले पाए। फिलहाल 5 गेंदों में 12 रन चाहिए, 2 बड़े स्ट्रोक। उड़ा हवा में और इस बीच विकेट कीपर बहुत ही बढ़िया कैच और 6वां विकेट गिरता हुआ। चार गेंदें बची है फिलहाल और 12 रनों की आवश्यकता है। इसी बीच हवा में गेंद और देखना होगा, नो मैंस लैंड पर जाकर गिरी गेंद। बढ़िया थ्रो, रनआउट का मौका और यस रनआउट के तौर पर और एक विकेट गिरता हुआ। 7वें विकेट का पतन। मुश्किलें बढ़ती जा रही है इस समय। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, MCX ने कमाल की गेंदबाजी की है। रवि अभी आ चुके हैं, 2 गेंदों में 11 रन। अभी भी यहां से मैच को जीता जा सकता है। औपचारिकता बची इस मैच में फिलहाल। संजय फिलहाल आ चुके हैं। एक बॉल 11 रन। वेलकम प्रदीप जी, आपका हार्दिक स्वागत कमेंट्री बॉक्स में।
और ये देखना होगा अभी यहाँ पर कहीं भी नजर नहीं आ रही है, बस इस मैच को बचा सकती है वो बारिश, और उसकी भी यहाँ पर चिन्ह नहीं है। ये जगह से खेला, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। ओ क्या बात है, चौका लगा दिया, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, और 4 रनों की मदद से 46 रन हो चुके हैं और केवल 7 रन से इस मैच को जीत लिया है MCX ने। कांग्रेचुलेशन MCX। कल के दिन में भी पूरे मैचेस उन्होंने जीते थे और आज के दिन की शुरुआत भी बहुत ही बढ़िया हुई है। चलिए NSDA और NC आपको तैयार रहना है।